Assalamualaikum. Um, we know we are a little late. 9 o'clock was our time, but sometime it's happened. So I'm Sayyida Rafia Mamuji, your host and your travel friend as well. आज जो हमारे साथ गेस्ट है हमारी and I really want her to introduce herself because she's doing so many things. But what is interesting for me is traveling because that is same thing between us. That I'm also like a crazy traveler. I always want whenever you want, I can always ready for traveling, and I'm like the race, yeah, because always want to up to something. It's running in my mind to go somewhere with mountains, with lakes, with sceneries that inspire me a lot in my life, and I think this is. I belong to somewhere in some mountain place. My soul or my body is belong to somewhere. So that's why the reason I'm connected with all these mountains. So Faryal is here. Faryal Asif, welcome. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम राफिया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ एज ऑलवेज, सबकी तरह थोड़ा सा सीजनल फ्लू है, बट देन दैट्स हाउ इट इज़। अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ रियली गुड एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन। व्हाट आई विल लाइक टू ऐड इज़ कि आज हम बात करें कि ट्रैवल इन द सेंस ऑफ न्यूज़ क्या है एंड ट्रैवल इन द सेंस ऑफ थेरेपी किस तरीके से अफेक्ट करती है एक इंसान को, एक ये चीज़। And I am very happy to see that a lot of people are working for promoting Pakistan tourism, and they feel a lot better while traveling. And me as a travel enthusiast, मैं सिर्फ दो लोगों जानती हूँ जो मेरी तरह ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, and they are from they're women. Is one is you, and then there's one lady I know. Her name is Iram Jahan, and she's a Okay. grandmother, and she loves to travel, and the way she expresses her feeling while traveling through pictures or videos is something to enjoy. And she is just like you, वो कभी भी किसी भी वक्त तैयार होंगी अगर आप उनको कहें कि पहाड़ों में चलना है, and when she meets me तो वो ये कहती है the mountain girl is here, and that's how she addressed me. And it's Seriously. very amazing to see that traveling does inspire a lot of people, and it is getting better and better, especially in Pakistan. Very true. But I want you to just little introduction for yourself, what you are doing, and what is your plan for future as well, because you are still young. You are traveler, but you are doing many other things also. I want to just to my viewers, they must know who you are. So just explain yourself and little intro for yourself. Sure, sure. So basically, my name is Faryal Asif. I'm currently working for an organization called Special Olympics Pakistan. It's a non-profit organization which is working to empower kids through the power of sports, जिनको intellectual disability है, and then the kids go for various trainings and camps, and then they qualified. When they qualify, they go for Special Olympics. जो कि ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स की तरह ही एक सेगमेंट होता है प्रॉपर अक्रॉस द ग्लोब. And currently I'm working for that organization. I'm working as the convener for standing committee of women education and training for the tenure 2021 to 2022 March. उसके अलावा I have been traveling a lot, but because of work, and I am an educational impairment counselor. That means कि मैं जो बच्चे जिनको पढ़ने लिखने की तकलीफ होती है, I help them cope up with Very their issues, and I counsel for that. So this is what I'm currently doing, and this is my 2021 का goal भी कि at least I have to build up my profile so good that I can shine in at least one field properly. So inshallah, this is what I'm inshallah. looking forward to. So let's start our topic. So first is what is news? Okay, news की जब हम बात करते हैं, the word news, MUSE, is Yes. anything which inspires you to create something amazing. आर्टिस्ट के पास म्यूज होता है, म्यूजिशियंस के पास म्यूज होता है, कोई भी इंसान, कोई भी चीज़, ख्याल, वाकया,
आपको अगर मोटिवेट करता है और इंस्पायर करता है उसी चीज से एक नई क्रिएटिव चीज क्रिएट करने को, then that particular act is called muse. It's basically getting inspiration from any smallest thing which is an important part of your life to create a new thing. So that is muse. फॉर एग्जाम्पल ऑथर्स के लिए कोई स्टोरी या उसका मेन कैरेक्टर म्यूज हो सकता है, म्यूजिशियंस के लिए कोई सर्टन पर्सन हो सकता है, शायर के लिए जिनके लिए वो शायरी लिखते हैं उनके लिए वो म्यूज होता है, बिल्कुल। आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, एनी कंटेंट क्रिएट जो किया जाता है, कोई भी कंटेंट जिससे आप इंस्पायर होते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो आपको एज ए ह्यूमन इंस्पायर करती है कोई चीज बेहतर क्रिएट करने के लिए, दैट पर्टिकुलर एक्ट इज कॉल्ड म्यूज. Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Okay. So, क्या इंस्पिरेशन मुझे सिर्फ इतना, जैसे मेरा है कि दिस इज लाइक from childhood I really love mountains, and I always sketch mountains and these lakes and these sceneries. So what attracts you basically, and you want to go to become whenever I see your picture I also see, oh, somebody's like me, standing on mountains and just enjoying God's nature. So what is your like attachment with these mountains, and why you connected like the way you are? Okay, one of the biggest reason for people to enjoy traveling in Pakistan, जिसके लिए करना चाहिए वो ये है कि हमें अपनी रोज़ाना के माहौल और ज़िंदगी से इतना हम थक जाते हैं, हम इतने पोल्यूटेड इन्वायरमेंट पे रहते हैं कि देयर इज़ अ पॉइंट दैट मेंटल ब्रेक की हर इंसान को ज़रूरत होती है, चाहे बिल्कुल। वो साल में एक दफ़ा हो या दो दफ़ा हो, एंड दे नीड इट. It can be after 4 months, it can be after 6 months, and if you're lucky enough to get this kind of chance to travel while working or while that 10 or 5 days vacations you have during your summer break or winter break, avail that. इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि आप उठ के सिर्फ सीधा जाएं तो नॉर्दर्न एरियाज जाएं. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स इन सिंध एंड बलूचिस्तान यू कैन एक्सप्लोर. Very true, स्पेशली very सिंध true. एंड बलूचिस्तान को आप बहुत आसानी से विंटर्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड दैट इज द डाइवर्सिटी. बेसिकली पाकिस्तान एक डाइवर्स वैसी कंट्री है, चाहे वो कल्चर को लेके हो, ट्रेडिशन को लेके हो, लोगों को लेके हो, बट एक तरीके से हम मौसम में भी बहुत डाइवर्स हैं. हमारे यहाँ नॉर्दर्न एरियाज में आप चारों मौसम देख सकते हैं, लिटरली देख सकते हैं विजिबल तरीके से. जब Very स्प्रिंग true. आती है तो यू हैव चेरी ब्लॉसम्स, जब मानसून आती है तो इट्स समर, जब ऑटम आती है तो यू कैन से सी एटलीस्ट 6 to 8 shades ऑफ लीव्स with tremendous colors, and the entire duration जो होती है ऑटम की वो डिफरेंट होती है. देन उसी तरीके से यू हैव winters which is certain is soft winters होती हैं, then extreme winters आती हैं. Extreme winters में when everything up north is off for tourists for at least 5 to 6 months, that is the point you can explore all the places which are nearby your cities, which is in your region, आपके सूबे में है, आपसे करीब है, आप एक दिन के लिए जा सकते हैं, 2 दिन के लिए जा सकते हैं. तो आपका ईयर का कैलेंडर बहुत आसानी से डिवाइड कर देती है, दैट फ्रॉम बिफोर अक्टूबर ऑनवर्ड्स यू कैन from probably from April to October आप नॉर्दर्न एरियाज को हमेशा बहुत इजीली अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, even till अच्छा, November. And from December to March, you can always explore southern region of Pakistan or any yes, other yes. places which is near our city. No, तो वो if बहुत people love डाइवर्सिटी होती है उसमें भी. बिल्कुल बिल्कुल है. और अगर आप हमारा बलूचिस्तान देखें तो देयर इज लॉट्स ऑफ द माउंटेन्स ब्यूटी इज टोटली डिफरेंट देयर, एंड यू कैन सी एक मतलब जो हर जगह की एक अपनी ब्यूटी है. सो बलूचिस्तान आल्सो हैव इट्स बिल्कुल, ओन ब्यूटी. its So own beauty. yeah. So it's same with सिंध. अगर आप सिंध में देखें, हम शायद एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, हम उस तरह से चीजों को लेते नहीं हैं. तो सिंध के अंदर भी वही चीज है कि अगर आप जो हमारे पास ओल्डेस्ट चीज है जो हमारे पास है, और हमें मतलब होना चाहिए, प्राउड करना चाहिए कि दीवारें चीन तरह वी हैव ऑल ऑफ सिंध एज वेल, जो हमसे बहुत लोग शायद जानते भी नहीं होंगे.
कितने लोगों को नहीं पता होगा कि सिंध के अंदर कितनी बड़ी हिस्ट्री है। इंडस वैली हिस्ट्री जो सिविलाइजेशन है वो कहाँ से चली, वो सिंध से ही itself. है। या बिल्कुल. तो It हम started from the लोग basis, ना? Basis सिंध से ही बेस start हुई है, from this from Arabian Sea towards Indian civilization जब यस बस चाहे वो जैसे आप बात करें, चाहे वो रानीकोट हो या फिर मोइंजोदाड़ो हो, दैट इज वन ऑफ बिल्कुल द मोस्ट rich civilization of Indus civilization का part है. And बिल्कुल people from abroad also, they might not know you for a certain person or a nationality, but अगर उनको ये पता चले, for example, I was traveling to Dubai for work and there was a kid, he was from India and he was very eager to talk to me, ना. और हम्म उसकी मदर ने उससे encourage किया कि आप दीदी से खुद क्यों नहीं पूछ लेते, हमारे आप ही बाजी बोले जाते हैं. तो उन्होंने मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछा कि दीदी आपके घर से मोइंजोदाड़ो कितना दूर है. तो मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा आप कभी पाकिस्तान आओ, आप कराची हो तो मुझे बताना, मोइंजोदाड़ो मैं आपको लेके जाऊंगा, मेरे ही प्रोविंस में है. एंड ही वाज सो एक्साइटेड एंड ही टोल्ड मी कि मैंने क्लास 3 की सोशल स्टडीज बुक में पढ़ा है और मुझे पता है आप वहीं से आई हैं जहाँ पे मोइंजोदाड़ो है, फ्रॉम द सेम Oh, कंट्री. And that was very sweet coming from a 10-year-old kid for me, from a country like from our neighboring country. And उससे फिर आपको समझ आती है कि कहीं ना कहीं ये आपकी नेशनल सिंबल के तौर पे आपकी पहचान भी है. दैट इज हाउ यू फील बेटर अबाउट इट. एंड देयर इज not just Sindh, even in terms of Balochistan and other places, historical ruins जो कहलाते हैं, अब तो ruins कहलाते हैं, but historical sites जब आप discover करते हैं, उनको explore करते हैं, they leave you spellbound. और आपको उससे उनको देख के, उनको observe करके realize होता है कि आप से पहले भी कुछ यहाँ लोग रहते थे, कोई लोग बसते थे, बिल्कुल किसी की जिंदगी थी ये बिल्कुल जगह, और अब वो आपके लिए एक लैंडमार्क के तौर पे स्टैंड आउट करता है. बट देयर वर पीपल दैट लिव्ड इन दिस सेम एग्जैक्ट प्लेस जहाँ पे आप खड़े हुए हैं. तो वो फीलिंग जब आपको आती है तब आप बहुत स्पेशल फील करते हैं. मैं तो एटलीस्ट करती हूँ. एंड फिर बिल्कुल आपको पता चलता है कि आप उस सिविलाइजेशन का हिस्सा हैं, या उस ट्रेडिशनल कल्चर का हिस्सा है जो यहाँ पे बस चुका है या सरवाइव किया है, या जहाँ या वो चीज जहाँ से बिगिन हुई है, यू आर स्टिल अ पार्ट ऑफ दैट रेवोल्यूशन. तो वो बहुत सीरियसली इन्फ्लुएंस करता है. बिल्कुल सेम जैसे अगर मैं कहूँ कि हमारे पास इसी तरह से अगर हम सिंध से थोड़ा सा आगे जाते हैं, आपके पास किला दरावर आता है, देन यू हैव इन बहावलपुर यू हैव लॉट्स ऑफ महल दैट दोज आर, अगर आप वहां जाएं तो मेरे साथ ऐसा होता है, आई डोंट नो, एंड जस्ट यू टोल्ड अस सेम थिंग कि जब वहां जाते हैं तो वही ख्याल आता है कि यहाँ जब लोग होते होंगे तो क्या होता होगा, कैसे वो लोग रहते थे और किस तरह से, और किस तरह से वक्त ने उनको कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। मतलब हम खड़े हैं जब इस टाइम यहाँ पे चल रहे होंगे या बैठ रहे होंगे तो वो लोग सोच भी नहीं रहे होंगे कि कौन आएगा, कौन इसको आके एक्सप्लोर करेगा। उस टाइम उनकी अपनी शान बिल्कुल. होती थी। तो वो चीजें जो बिल्कुल. वो कंस्ट्रक्शन है, वो स्ट्रक्चर है, वो आपको बहुत सारी स्टोरीज सुनाता है। और वो चीजें जो है वो मेरे लिए, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि मैं ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती हूँ, और तुम्हारे अंदर भी मैंने वो चीज फील की है कि जैसे वो चीज एक आपके अंदर ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाता है। एक क्वेश्चन, इज ट्रैवलिंग Hmm. therapeutic, like it's giving some kind of therapy or give you relaxation? Yes. See, एक चीज जो लोगों को लगता है कि इज अ प्रो, इज अ कॉन ऑफ ट्रैवलिंग इन पाकिस्तान, बट आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रो एफिशिएंट फैक्टर ऑफ ट्रैवलिंग इन पाकिस्तान इज के एक पॉइंट के बाद देयर इज नो सोशल मीडिया जिसकी आपको एक हेजिटेशन हो कि मुझे Yes. अभी स्टेटस लगाना है, अभी चेक इन डालना है, अभी मुझे स्नैपचैट भेजनी है, अभी मुझे इंस्टा करना है, अभी मुझे इसको व्हाट्सएप पे कॉल अटेंड करनी है. नो. वो ये आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू अ वेरी फेमस एक्टर्स प्रोफाइल who was missing from his profile for 6 months, and उन्होंने कहा था कि हमें सोशल क्लेंजिंग की जरूरत होती है. दैट वाज अ वेरी न्यू टर्म फॉर मी, बट आई रियलाइज कि वो सोशल क्लेंजिंग मैं तब एक्सपीरियंस कर रही होती जब मैं ट्रैवल कर रही होती. ठीक है. True. आई नीड टू मेक श्योर व्हेन आई एम गोइंग ऑन अ वेकेशन दैट either I have done with my work and there's no loophole left behind कि मुझे उसके लिए कॉल बैक्स आ रही होंगी, हो रही होगी. And
I make sure that at people at my home or people who are important to me will know that इस certain time period के लिए I'll not be reachable, but I'll be safe. तो Yes. वो चीज जो है दैट पीरियड जिस वक्त आपके ऊपर वो सोशल प्रेशर बिल्कुल भी नहीं होता, और मैं लेती भी नहीं हूँ. कुछ लोग होते हैं जो जैसे ट्रैवलर्स ब्लॉगर्स एंड ब्लॉगर्स हैं, उनको बहुत इंटरेस्ट होता है, यू नो, दे हैव टू मेक देयर कंटेंट, but then when they edit their content and then they put it up on a social media or any other platform, it takes time, and they have quality work and that they are doing an amazing job. But a person who's like me, who's a travel enthusiast, वो सिर्फ सुकून करने जाता है. उस एज अ थेरेपी उसका इफेक्ट ये होता है कि इफ यू हैव एंजॉयड योर वेकेशन एंड यू हैव रिलैक्स्ड स्पिरिचुअली एंड मेंटली, आप एटलीस्ट 4 मंथ्स के लिए, मैंने देखा है फॉर लास्ट 3 years, आपके 4 मंथ्स की नेक्स्ट 4 मंथ्स की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है. True. मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस भी आपको सर्टेन पॉइंट पे आपके रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक ब्रेक देने के लिए चाहे 3 दिन के लिए उठा के भी नथिया गली या बोरबन लेके जाती हैं या स्कर्दू लेके जाती हैं. That makes a big difference. That makes a big difference that at certain employee जो है उसके एटलीस्ट अगर 4 महीने ना सी तो उसके 15-20 दिन के जो आगे के 15-20 दिन है वो अच्छे गुजरते हैं. And that is what is basically the therapy you need. You need break, and आपको जो सुकून मिलता है उससे. और एक जो चीज़ मैंने और नोटिस की है, सुकून के साथ साथ एक चीज़ जो आप एक्सप्लोरेशन में अंडरस्टैंड करते हैं वो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड बढ़ता है, आपके अंदर एम्पैथी बहुत बढ़ती है, आप बहुत शुक्रगुजार होते हैं, आप अल्लाह के बहुत मेहरबान होते हैं कि उन्होंने आपको नेमतों से नवाजा है जो आप देख सकते हैं. और जब अगर एज थेरेपी जब हम माइंडफुलनेस, जब प्रॉपर माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं और आप देखते हैं कि ये मैं हूँ छोटी सी पत्थर पे बैठी हुई, ये दरिया है, दरिया के पीछे पहाड़ है, पहाड़ों के पीछे सफेद पहाड़ है जिसपे बर्फ पड़ी है, और उसके बाद आसमान है, तो उस True. वक्त आप बहुत एक्सट्रीमली खुश फील करते हैं ये जान के कि आप अशरफुल मखलूकात हैं और अल्लाह ने आपको बेशक. इतनी तौफीक दी है कि आप अपना काम करने के बाद एक जगह पे जाके चले 15 मिनट के लिए ही सही सुकून से बैठे हुए हैं, और तब आपको रियलाइज हो रहा है कि हाउ ब्यूटीफुल दिस वर्ल्ड इज, हाउ अमेजिंग आवर क्रिएटर इज, एंड आप उसको थैंकफुल होते हैं. वो थैंकफुलनेस अगर हम आप पे बैठ के भी कोई दुआ, तभी तो कहते हैं ना कि आप सफर में दुआ करें कबूल होती है, क्योंकि वो बहुत साफ दिल से की जा रही होती हैं. और उस वजह से बिल्कुल. आपको सेल्फ रियलाइजेशन होती है. बहुत सारे लोग हैं, जैसे म्यूज की बात करें तो उनको नए आइडियाज आते हैं, उनके ख्यालात जो होते हैं, दे गेट क्लियर आइडियाज के यू नो हाउ टू गो अबाउट आवर थिंग्स, दे फील बेटर, probably it helps them taking in decision. कोई अच्छा काम शुरू करने से पहले भी इट्स बेटर दैट यू टेक अ ब्रेक. सो देयर आर लॉट ऑफ वेज जिस तरीके से जिससे ट्रैवलिंग आपके लिए थेरेप्यूटिक हो सकती है. बिल्कुल. अच्छा, मेरे ख्याल से काफ़ी अरसे से ट्रैवलिंग कर रही हो, तो क्या एक्सपीरियंसेस गेन किए और क्या लर्न किया? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस गेन किए, खतरनाक किस्म के भी और बहुत फनी भी. स्पेशली अगर मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं तो मैं स्टार्ट करूंगी इन टर्म्स ऑफ हेल्थ. हम जब शहर में लोग रहते हैं ना, वी डू नॉट प्रैक्टिस एंड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. जब हम वहाँ जाते हैं तो एक चीज़ होता है कि आपका इन्वायरमेंटल चेंज होता है. इन्वायरमेंटल चेंज किस तरीके से आपकी हेल्थ को अफेक्ट करता है वो चीज़ें ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती. फॉर एग्जांपल आपको वहाँ जाके बहुत सर्दी लग सकती है, आप वहाँ जाके अगर आपने पानी पी लिया एंड दैट डजंट सूट योर सिस्टम, यू कैन हैव बैड स्टमक एक. कहीं का पानी आपके लिए इतना फ्रूटफुल होता है कि आपकी स्किन भी खूबसूरत कर देता है, आपके बाल भी अच्छे कर देता है, आपका सिस्टम भी साफ कर देता है, वो आपको पूरा रिप्रोक्रिएट कर देता है, यानी रिवाइटलाइज कर देता है फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल हुंजा हो गया या कश्मीर हो गया, एंड द वाटर ओवर देयर इज सो रिच दैट इट मेक्स यू फील अ लॉट बेटर. बट जैसे ही अगर आप एक तरीके से, एक साल में गई तो मैं हुंजा चली गई, एक साल में कश्मीर चली गई, तीसरे साल में गई तो मुझे लगा कि अच्छा यहाँ का भी पानी पी लेते बहुत अच्छा होगा, एंड आई वेंट टू स्कर्दू, एंड स्कर्दू हैज इट्स ओन ब्यूटी बट इट लैक्स ग्रीनरी. तो वहाँ का पानी जो है वो अच्छा तो है बट वो मिनरली बहुत एनरिच है, इट्स हाई इन मैग्नीशियम एंड बिल्कुल. पोटेशियम. एंड पीपल लाइक अस विद यू नो नाजुक इम्यून सिस्टम, उनका
फौरन खराब हो जाता है। खराब हो जाता एंड है, बिल्कुल। ये चीजें वहाँ के लोकल्स आपको बताते हैं, आपके ट्रैवल गाइड का काम है आपको ये बताना, ये चीजें पूछना कि देखें आपने फर्स्ट एड तो रखी है, अपनी मेडिकल किट तो अपने साथ रखी है, बट दिस इज द डिफरेंस। ये कश्मीर की या बात ये नहीं है कि आपने कहीं से भी पानी भरा और पी लिया और आपको कुछ नहीं होगा और आप पीपल ज्यादा अच्छा फील करेंगे। इट्स डिफरेंट। सेम वी फेस। सो या सो सबसे बट ज्यादा आई थिंक लर्निंग आपको होती है हमारे पास बॉडी अवेयरनेस को लेके। फरियाल, हमारे पास प्रॉपर गाइड्स नहीं है। हमारे पास प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं बनाई गई हैं कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें किस तरह से करना है, क्या चीज़ें होनी चाहिए। टूरिज्म को उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जा रहा है जैसे होना चाहिए बेसिकली। अच्छा, अब हम्म। एक जैसे मैं एक क्वेश्चन करूंगी, मेरे पास एक क्वेश्चन है भी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी। How to promote Pakistan ecotourism to the international market? Eco tourism. Okay. Yeah. So one thing is that our youth need to come into hotel management and tourism, and they need to study it. Yeah. And जो प्रोफेशनल ऑलरेडी इस फील्ड में है, दे नीड टू लर्न फ्रॉम देम ऑल्सो। Yes. सबसे ज्यादा हमें जो हेल्प कर सकते हैं इको टूरिज्म में, विद पीपल दैट आर वर्किंग एज टूरिस्ट और टूर ऑपरेटर्स एंड समथिंग, आर द लोकल्स ओवर देयर। जितना आप लोकल लोगों से सपोर्ट लेते हैं, उनकी जितनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है, इवन एज अ वेदरमैन जब कहते हैं ना, देख के बताते हैं हाँ भाई 10 मिनट बाद बारिश होने वाली है, इवन दैट उनकी इनपुट इतनी इम्पोर्टेंट एंड एक्यूरेट होती है, दैट इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, दैट कैन ऑलवेज हेल्प। other young youth need to come forward to promote Pakistan tourism। Yes. सबसे ज्यादा ख्याल ये Yes. रखना है हमें, उसके साथ साथ कि हम अपनी आवाम को थोड़ा एजुकेट करें कि इफ यू आर गोइंग, डोंट टेक द लिटर विद यू ऑन दोस प्लेसेस। Please, and if you are ठीक है। taking litter, to please keep disposable bags with you, dustbin bags with इट्स वेरी you. इजी, So इट्स you are, वेरी इजी। it's very easy. So if क्योंकि जो एक experience share करूंगी, I'm sorry I'm cutting your in between. हाँ So श्योर बिल्कुल। it's really pathetic when you go to Babusar Top, और अगर वो तुमने भी एक्सपीरियंस किया होगा, वो मैंने भी किया है, जहाँ पे वो पैम्पर्स पड़े हुए होते हैं रोड पे और कचरा पड़ा हुआ होता है और बॉटल्स फेंकी हुई होती हैं, तो बहुत शेम फील हो रहा होता है कि हम वहां पे कोई भी अनएजुकेटेड अनसिविलाइज्ड पर्सन नहीं आता है ट्रैवलिंग के लिए। जो भी आ रहे होते हैं वो अपनी कार्स में आते हैं, दे आर सिविलाइज्ड, दे आर कमिंग एंड दे आर थ्रोइंग ऑल लिटर ऑन द रोड। इट्स नॉट, आई थिंक दे शुड अंडरस्टैंड, आप नेचर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस तरह से। और मुझे समझ नहीं आता कि जो चीज हम कैरी कर सकते हैं अपने साथ और ले जाके आगे किसी गार्बेज में डाल दें या किसी डस्टबिन में डाल दें या जो जगह बनी हुई है वहां पे करें, तो इसके लिए क्या तुम्हारे दिमाग में आइडिया है, क्या होना चाहिए और हम किस तरह से इसको सपोर्ट और प्रमोट कर सकते हैं कि लोग ये लिटर फैलाने से थोड़ा सा बाज आ जाए? अच्छा, अभी बिकॉज आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड टू द एकेडमिक डोमेन्स एंड टीचिंग डोमेन, उसमें एक नई चीज़ जो टीचर ने सिखाई है टू कट डाउन ऑन गार्बेज, इसके जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर बॉटल है, ठीक है, एंड आप इसके साथ साथ आप चिप्स खा रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, उसका रैपर है, ऑलवेज स्टफ दैट रैप बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू गेट रिसाइकिल, राइट। इसको आप रिसाइकिल कर लें या तो फिर आप फेंक रहे हैं। अगर आप इसको फेंक रहे हैं तो वो कचरा अगर आप इसके अंदर ही स्टफ कर देंगे ना, तो एटलीस्ट इट हैज कैपेसिटी टू फिल अप 3 to 4 चिप्स रैपर्स एंड 3 to 4 बिस्किट रैपर्स एट वन टाइम। वो आपके जो लिटर है उसकी अमाउंट को ऑटोमेटिकली कट डाउन कर देगा। दिस इज न्यू प्रैक्टिस, दिस इज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन स्कूल, नंबर 1। नंबर 2, देयर इज ऑलवेज दिस थिंग दैट आपकी वैन, अपनी बस, अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा पेपर बैग या ट्रैश बैग रखें जो आप जाके अपने रूम में, अपने होटल में डिस्कार्ड कर सकते हैं आसानी से। एंड ऑलवेज एक चीज जो है, अगर आपके अंदर ये हैबिट है तो आपकी गाड़ी से कोई भी अगर खिड़की खोल के बाहर कचरा फेंक रहा है उसको उसी वक्त रोकें, rather than telling them and letting them throw it। आप बोल दें मुझे दे दे, मैं कचरे के डब्बे में डाल देती हूँ, मैं डाल ये देती बिल्कुल हमने ऐसा किया है, हमने ऐसा हूँ। किया हम है ऐसा और करते कई हैं, जगह पे ऐसा एग्जैक्टली। किया वी डू है। दैट इन हाँ। अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड पीपल हु ट्रैवल विद अस, चाहे वो हमारे कोलीग्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो, उनको पता है कि ये मत करना, फरियाल बहुत डांटेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन एज स्मॉल एज अ हैबिट ऑफ थ्रोइंग च्युइंगम, जो आपने चबाई होती है और बहुत लोगों को आदत होती है स्पिट करने की।
ठीक है, आप इतना सा टिश्यू लें, उसमें रोल करें और उसी थैली में डाल दें, वो च्युइंगम कहीं नहीं जाएगी। वाई? बिकॉज आई रिमेम्बर वंस कि किसी ने हमारे ट्रैवल करते हुए किसी ने च्युइंगम थ्रो की, वो एक अंकल के बेचारों की स्लीव्स के जाके नीचे लगी बिल्कुल यहाँ पे। ही वॉज ऑन अ बाइक, ही वॉज जस्ट क्रॉसिंग, और उनकी जब यहाँ स्लीव उस च्युइंगम पे लगी तो पूरी च्युइंगम उनकी स्लीव, जब उन्होंने ऊपर की हैंडल पकड़ने के लिए, तो द एंटायर च्युइंगम वॉज देयर। अब उनके लिए घर पे कितनी प्रॉब्लम होगी, उनकी वाइफ को कितनी प्रॉब्लम होगी, अगर वो किसी सोशल गैदरिंग में जा रहे होंगे तो वो क्या करेंगे? Oh, बेचारे कपड़ों यस। पे से, कपड़ों पे नहीं से सिर्फ या बालों आप पे से उसको च्युइंगम उतारना इज च्युइंगम नॉट इजी। इज च्युइंगम इज नॉट गुड फॉर बर्ड्स एज वेल। अगर आप सिंगापुर में, आपके ये सबसे बड़ा क्राइम है कि आप च्युइंगम वहां पे नहीं खा सकते, इवन यू कैन नॉट कैरी च्युइंगम। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हम सिर्फ नेचर, हम अपने ग्लिटर से वो जगह को गंदा नहीं कर रहे, हम पता नहीं कितने एनिमल्स के लिए भी, हमारे लिए हम वो नेचर को भी हार्मफुल हैं हैजियत वो दे चीज। रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये बहुत सारी एनी चीजें एनिमल हैं। कैन चोक। प्लास्टिक पे तो बहुत इजीली एनी से चोक हो सकते हैं। जैसे अभी आई वाज रीडिंग दैट ये जो कैन कवर्स होते हैं, बॉटल के रिंग्स होते हैं, इनको अगर आप फेंक रहे हैं तो इनको कट करके फेंकें, ताकि वो फिश या कोई भी एनिमल की नेक जो है इसमें स्टक ना हो जाए, बिकॉज दे बिल्कुल। आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे कैन गेट स्टक इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो हमें ये इको फ्रेंडली हैबिट्स में हमें हाउ टू कंट्रोल वेस्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ाना चाहिए एंड पढ़ना भी चाहिए। एंड एक चीज जो मैं किसी भी ट्रैवलर को कहती हूँ, which I have learned from my father, is do your homework before you are traveling. आपको किसी ने लिख के दे दिया पेपर पे, ये है, इतना ही होता है, इतना नहीं होता। इफ यू हैव इसी नॉट में बड़ा मजे एक्सप्लोर्ड का दैट। क्वेश्चन, एक है कमेंट, आई रियली वांट टू शो विद यू दैट कमेंट। हाँ। Good idea to stop those who throw the litter outside, but what should we do who spit out pan ki pee? आई थिंक उनको देखते ही मजहर का मैसेज है, मजहर अब उनको देखते ही अस्तगफार पढ़ा करे, थोड़ा सा पढ़ा करे, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्या कर एंड सकते हैं? मतलब सीरियसली हम कहाँ कहाँ लोगों को सही करेंगे। पान की पीक तो बाजुकात इतनी खराब होती है कि जो वो फेंकते हैं वो पता नहीं कितने लोगों के कपड़े खराब कर देते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड दिस। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है जो भी मेरे लिए, मुझे लग रहा है कि वो क्या है, इंटरेस्टिंग है। What's the best place you recommend in northern area of Pakistan? जुनेद एहसन है ये। Okay. Um, Best place I recommend in northern areas of Pakistan. So, with your first trip, you need to go to Hunza. If it's your second trip, you need to go to Skardu. And in the third, you can go to Kashmir and then Kumrat. And if you're single, then Hunza and Kashmir, Skardu pehle jaएं. And if you're married and you have family, then आप Kashmir और अलग जगह जा सकते हैं. But it depends. It really depends on which kind of gathering you're going with. Yes. Um, और एक और चीज ये है कि when you're going with family, you need to see accessibility and किस family yes. member के साथ जा रहे हैं. So सबसे accessible right now in terms of family, if you're traveling in northern areas, is Skardu, because that is one of the most accessible place because of a very proper फ्लाइट एंड एयरपोर्ट। एंड फॉर गॉड सेक वहाँ की फ्लाइटें सेफ होती हैं, सिर्फ मौसम आपका साफ होना चाहिए। डोंट स्केयर पीपल कि अगर कोई कहे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, उसको आधा हार्ट अटैक आप उसको वहीं दे देते हैं। It's not, it's safe. It is a very properly made airport. People do not know, but by 2023 स्कर्दू जो है पाकिस्तान का थर्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट हो सकता है, which would be taking receive and which would be receiving international flights as well, because that's part of Pakistan tourism promotion drive. तो लोगों को आइडिया नहीं है, लोग आधे से ज्यादा लोगों को ये डरा देते जहाज के ऊपर बैठने के तस्वुर से ही। सो फ्लाइंग टू गिलगित इज ऑल्सो बेटर, फ्लाइंग टू स्कर्दू इज मच मोर कन्वीनियंट। आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर प्लेसेस, चित्राल भी जाती है, गिलगित भी फ्लाइट जाती है। आई हैव नेवर एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ, सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट, बट फ्लाइंग फ्रॉम इस्लामाबाद टू स्कर्दू इज वेरी सेफ if you have an option and मौसम साफ है। It's a very short flight, especially from Islamabad. It's a 50 minute flight. I think it's worth taking that kind of flight and going if you're traveling in terms of family.
अगर आप बाय मैं रोड ट्रैवल करने का स्टेमिना रखते हैं तो फिर तो बहुत सारी जगह है जहाँ पे आप जा सकते एक और ऐड कर चाहूंगी नॉर्थ एरिया में आपके लिए, जुनेद साहब, गिजर जरूर जाइएगा। जो आई थिंक मैं तो वहां जाके आज भी दोबारा जाने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि अगर आपने हुंजा देख लिया, आपने गिलगित देख लिया, आपने स्कर्दू देख लिया, आपने कश्मीर देख लिया, तो आपके लिए जो ब्यूटी रह गई है वो गिजर है। क्योंकि गिजर की जो ब्यूटी है वो आप सीरियसली मतलब जब वहाँ हम लोग जब एंटर हुए गिजर के एरिया में, और वहाँ पे लेक्स, डिफरेंट लेक्स अपनी अलग अलग ब्यूटी लेके आती हैं, दे आर वर्जिन लेक्स। हाँ, बस प्लीज वो लोग वहां जाएं जो वहां लिटर नहीं करेंगे, क्योंकि वो जगह अभी भी बहुत साफ है। हैं। तो अनटच्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। अनटच्ड है, तो उसे प्लीज वो लोग जाके एक्सप्लोर करें जो नेचर से प्यार करते हैं। वो बिल्कुल नहीं जाए हरगिज जो अपने साथ कचरा लेके जाते हैं और पैम्पर्स लेके जाते हैं, उनके लिए वो जगह बिल्कुल मना है जाने के लिए। अच्छा जी, एक और वही इको टूरिज्म से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, ये भी एक इंटरेस्टिंग है। हाउ वुड यू प्रिडिक्ट इको टूरिज्म इन पाकिस्तान? प्रिडिक्ट इन व्हाट सेंस? इको टूरिज्म इन पाकिस्तान, देखिए अभी से अगर हम हैबिट्स एंड सर्टेन क्राइटेरियाज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस डेवलप करके इंट्रोड्यूस करना शुरू करें एंड उसको अगर रेगुलर प्रैक्टिस बनाएं तो आई थिंक इको टूरिज्म, प्रमोटिंग इको टूरिज्म इज वेरी इजी इन पाकिस्तान। एंड जहाँ तक मैंने अभी रिसेंट बजट के बाद एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, देयर इज अ चांस ऑफ 200% ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान टूरिज्म बाय 2023। वाह, 200% is a lot, not just 100%, it's 200% growth। तो एंड उसके क्या लिए हम लोग, मैं एक बीच में हमें फिर ही ख्याल रखना बोलूंगी, पड़ेगा। क्या क्या हम लोग उसके लिए तैयार हैं? क्या हम लोग उसके लिए प्रिपेयर हैं कि हम इतने लोगों को कैटर कर सकेंगे? क्या हमारा टूरिज्म इतना स्ट्रांग है? और हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि देखो, हम ही हैं आई थिंक जिन्हें स्टेप लेना है, हम ही हैं जिन्होंने अपने टूरिज्म को आगे लेके जाना है और प्रमोट करना है। तो हमें ही सोचना है कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे जो ये 200% जो हमें मिल रहा है, ये 500% भी हो सकता है, ये उससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ब्यूटी है आई थिंक वो और कहीं नहीं है। वी हैव ऑल 4 सीजन्स, ये सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह की बिल्कुल नेमतें जो हमारे पास हैं, जो मादनियात हमारे पास हैं, जो इवन लोगों को नहीं पता कि कितने जो स्टोन्स हैं, कितनी माइंस हैं जो गिलगित, हुंजा, स्कर्दू, कश्मीर, यहाँ पर जो डिस्कवर चीजें की हैं वो जाती हैं। डिस्कवर की जा रही है। लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे पास क्या है। इवन अगर आप बलोचिस्तान को लें, तो जो कुछ वहां पर हमारे पास है कि वो अनबिलीवेबल अनबिलीवेबल है। तो उसके लिए क्या सजेशन दोगी फरियाल के, क्या हमारी गवर्नमेंट को स्टेप लेना चाहिए और किस तरह से उसको उन्हें करना चाहिए कि ताकि आगे जो चीजें हैं वो बहुत स्मूथली चलें, ना कि उनमें कोई प्रॉब्लम्स ना हो और हमें कुछ प्रॉब्लम्स सेफ ना, और सिक्योरिटी वाइज हम उसको कैसे मैनेज करेंगे? ओके, जो अभी एक सवाल अभी भी लिखा हुआ है, जैसे हाँ, एजे ओशंस में लिखा क्वेश्चंस। है प्रेडिक्टिंग इको टूरिज्म। इफ यू आर आस्किंग दैट पीपल इन जेबी एंड आजाद कश्मीर आर रेडी टू प्रमोट इको टूरिज्म, yes they are ready। दे आर If they are capable, yes they are capable। They are willing to do that because they know कि उनकी 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 सोशल सर्कल के लिए, उनकी सोशो इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर की ग्रोथ इससे बहुत अच्छे से हो सकती है। हमारी जो टूर ऑपरेटर्स हैं या सोशल टूर्स हैं या टूरिस्ट जो लेके जाते हैं टूरिज्म को प्रमोट करें, दे आर ऑल्सो डूइंग अ वेरी वेरी गुड जॉब। एंड दोज आर द पीपल जो एक एजुकेशन, एक तरीके से एजुकेट कर सकते हैं अपनी ही ऑडियंस या अपने टूरिस्ट को बिफोर दे गेट ऑन द बस or when they are sending the itinerary for a certain tour, कि these are certain things you're not supposed to do। दिमाग के एथिक्स उस पर्टिकुलर प्रॉब्ली हो सकता है एक सिटी के पर्टिकुलर एथिक्स के खिलाफ हो, एक जगह की रिस्पेक्ट के खिलाफ हो। उस तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कुछ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको क्रिएट करने पड़ेंगे। उस पे कहीं ना कहीं इफ इट्स अबाउट लिटर एंड प्यूकिंग, तो आई थिंक उस पे तो फाइन होना चाहिए, बिल्कुल, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल। जितना फाइन लगा सकते हैं लगाएं।
अपने आपने किस तरीके से बिहेव करना है इन सर्टेन एनवायरनमेंट, आप उस एनवायरनमेंट की, उस जगह के लोकल की तरफ कितने रिस्पेक्टफुल हैं, ये चीजें भी मैटर करती हैं। तो सेल्फ कॉन्शियसनेस थोड़ी सी इंसानों के अंदर होनी चाहिए, दे शुड बी वेरी कॉन्शियस अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप सीख सकते हैं, दूसरों को सिखा सकते हैं, एंड जो टूर ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं वो इन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं, या एज एन इंडिविजुअल आप भी उस चीज़ का इनिशिएटिव ले सकते हैं। फॉर बिल्कुल। एग्जाम्पल, हाउ वुड यू फील दैट यूके एम्बेसी के एम्बेसडर जाके इस्लामाबाद के एक पॉइंट पे हर संडे जाके लिटर ड्राइव करते हैं और वहाँ का सारा कचरा पूरे हफ्ता जो कचरा मचा कर आते हैं, वो एक फॉरेन एम्बेसडर जाके अपनी हाइक पे वो कचरा इकट्ठा करके नीचे लेकर आते हैं। Shame on us. That was really really Seriously. embarrassing. That was really really embarrassing. And उसके बाद different clubs from Islamabad, from Rawalpindi approached and went for a proper drive to clean up these places. I mean, like, आप उन लोगों को थोड़ा सा edge दें जिनको बेचारों को ऑलरेडी हाइक करने तो जा रहे हैं, but then you are making that view horrible for them or bad for them. And instead of going and enjoying that places, उनको लिटर कलेक्शन की एक ड्राइव करनी पड़ती है। एंड हैट्स ऑफ टू दोस काइंड ऑफ पीपल जो इस तरीके के इनिशिएटिव्स के ऊपर काम करें, इन्वायरमेंट के ऊपर काम करें, लिटर रिडक्शन के ऊपर काम करें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर करें, वाटर कंजम्पशन के ऊपर है उस पर करें, वेस्टेज पे करें, एंड दे आर डूइंग अ ट्रेमेंडस जॉब। एंड आप इसमें अगर नोटिस करें तो सबसे ज्यादा वाइटल रोल जो प्ले करें वो यूथ ही कर रही है। ट्रू। तो अभी यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं, जैसे नादिया खान है, उन्होंने लिखा है, मैं चाहूंगी कि वो भी मैं आपसे शेयर करूं, प्लीज जस्ट रीड इट। Our people need to understand that throwing garbage in lake and surroundings are destroying habitat. If they can follow rules when traveling internationally, they should do it here as well. Government should impose heavy fine. Yes, what you told. Yeah, exactly. Throwing Absolutely. garbage. Yeah. But she has put up a very beautiful point कि आप जो चीज इंटरनेशनली ट्रैवल करके नहीं करते हैं वो आप यहाँ क्यों कर रहे हैं। बेशक। तो ये ठीक असल है, में एंड मैंने आई एक एम चीज नॉट देखी टॉकिंग आई एम है, नॉट हम टॉकिंग अबाउट सब ने। बहुत दूर जाने का डिफरेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट एज स्मॉलेस्ट फ्लाइट दैट यू टेक इज ऑफ 1.5 hour फ्रॉम कराची टू दुबई। दुबई। कराची से आप क्या फ्लाई करे थे, दुबई एयरपोर्ट पे आप क्या निकलते। आई एम नहीं, टॉकिंग अबाउट दो मैं आपको पीपल जो मैं बड़े वहाँ की मजे का, होते हैं उनके बारे में बता रही हूँ मैं। मैं बहुत नक्शा ही मजे का बदल जाता है। एक्सपीरियंस सुनाती हूँ, मैं मजे का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। आई वॉज ट्रेवलिंग बैक फ्रॉम दुबई टू कराची। एक साहब वहां हमारे साथ ही, हम मेरी फ्लाइट पे ही थे, वहां से बहुत तमीज से क्यू में खड़े हुए हम सब, जिस तरह से आपको पता है कि जिस तरह से वहां पे होता है, आपकी चेकिंग होती है, वो आपको जिस तरह से लाइन, आप चू भी नहीं करते, आप घंटों खड़े रहेंगे लेकिन आप चू भी नहीं करेंगे। जैसे ही वो एंटर हुए पाकिस्तान, तो वो उन्होंने क्यू तोड़ दी, उन्होंने मिसबिहेव करना शुरू कर दिया। तो मुझे देखकर इतनी हैरत हुई कि क्यों, मतलब हम अपने मुल्क में अपने लोगों को रिस्पेक्ट क्यों नहीं दे सकते, हम उनके साथ क्यों मिसबिहेव करते हैं, हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें इसीलिए क्यू में खड़ा किया जाता है क्योंकि हम में तमीज नहीं है, और जब हम यहाँ आते हैं तो हम सब रिस्पेक्ट भूल जाते हैं, वो एम्प्लॉयज जो हमारी सर्विस के लिए खड़े हुए हम उनको बेइज्जत करने लगते हैं। सो सेम हैपनिंग। मुझे एक बाबा है, शायद तुम्हारी मुलाकात हुई हो, ईगल नेस्ट पे वो क्लीनिंग करते हैं, जो लिटर हम फेंक कर आते हैं, वो बेचारे वो सब उठाते हैं, हुंजा। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज बताई और मुझे बड़ी हैरत हुई कि लोग ऐसे कहने लगे, हम सिर्फ उसके, जब वो वहां जाते हैं तो वो 20 रुपए या 30 रुपए सिर्फ वो चार्ज करते हैं क्योंकि वो क्लीनिंग करने के लिए, वो 20 रुपए कोई हैसियत नहीं रखते, हम उससे ज्यादा अपने बच्चों को चाहे चिप्स और ड्रिंक्स पे जाया कर देते हैं। तो कहते हैं उसको भी देने में लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो रही होती है, लेकिन हम हमारी जो कम्युनिटी है वो हमें सपोर्ट कर देती है, वो हमें पे कर देती है, तो हम वो क्लीन रखते हैं। लेकिन हम क्यों नहीं उसे क्लीन रखते? हम जब जाते हैं हम ये क्यों भूल जाते हैं, हमें सिर्फ ये लगता है कि हमें अपना घर जहां हम रहते हैं बस उस जगह को क्लीन करो, बाकी जगह पूरा पाकिस्तान हमारा है। और शायद यही हमारी हमारी सारी गलती पता है कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे यहाँ स्ट्रिक्टनेस अगर स्टार्ट हो तो वो हमारे घर के सामने कचरा फेंकने से स्टार्ट होनी चाहिए। जो लोग, अगर हमें यहीं पे फाइन लगना शुरू हो जाए ना, जो लोग बहरिया टाउन में रहते हैं
वो अगर पानी भी बाहर फेंक देते हैं उनको 2,000 रुपए चार्ज हो जाता है। यही चार्जेस यहाँ पे लगने लग जाए तो लोग कचरा फेंकना छोड़ देंगे, तो फिर वो डर के मारे कहीं भी कचरा नहीं फेंकेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ जो हम अभी रिसेंटली पढ़ रहे थे, व्हेन आई वाज डूइंग अ सेशन व्हिच वाज ऑन, जिसमें से कहीं ना कहीं बात आ गई थी थोड़ी सी पॉजिटिव पेरेंटिंग एंड लर्न बिहेवियर पे। आप जो बात कह रही हैं वो है हमारा लर्नड बिहेवियर, जो बिल्कुल। हमारे घर से स्टार्ट होते हैं। घर मतलब बिल्कुल। घर, घर वालिदैन से, मतलब अपने ग्रैंड यस। पेरेंट्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। एक लोगों को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, बच्चा जो देखेगा वो सीखेगा। अगर ट्रू। आपने चलती हुई गाड़ी से बाहर कचरा फेंका है, वो भी फेंकेगा, चाहे वो कॉन्शियसली फेंक रहा हो, अनकॉन्शियसली फेंक रहा हो, दैट वुड बी अ लर्न्ड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर के बाहर देर आर माशाल्लाह से वी हैव ट्रीज, उसके नीचे गाड़ी पार्क करने के लिए और बैठने के लिए सब आ जाते हैं, बट एक दरख्त लगाना कोई पसंद नहीं करता। दैट इज व्हाट वी हैव नॉट, दे हैव नॉट लर्न प्रॉपरली कि एक दरख्त लगाए, हमें जरूरत है, हमें कंक्रीट के जंगल में रह रहे हैं, हमें दरख्त की जरूरत है, हमें ग्रीनरी की जरूरत है अपने एटमॉस्फेयर को चेंज करने के लिए। हम लोग कहते हैं पाकिस्तान कराची में इतना ह्यूमिड क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि सीरियसली। हमारे पास हम इन्वायरमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं। और ये छोटी छोटी हैबिट्स, अगर सही बात है, अगर यहाँ पे भी फाइन लग जाए, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आप ले लें, फॉर अ प्लेस लाइक पोर्ट ग्रैंड, ठीक है। वंस यू एंटर पोर्ट ग्रैंड, यू बिहेव इन अ सर्टेन वे। वहां तो आप कचरा नहीं फेंक रहे ना, वहां तो आप बिल्कुल। पानी थूक रहे हैं, वहां पे आप लिटर नहीं कर रहे। वाई? बिकॉज उस सर्टेन प्लेस की रूल्स एंड रेगुलेशन एंड अथॉरिटी है जो चेक एंड बैलेंस रख रही है, और आपने यहाँ करा और वो आपको फाइन कर देंगे। यही इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यही स्ट्रक्चर बहुत सारी और जगहों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तो ये चीजें सही रहेंगी। जब तक सुधारेंगे नहीं लोग, सुधरेंगे नहीं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टेकिंग केयर ऑफ लिटर एंड गार्बेज रिडक्शन जो है, तो ये चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो हमें अपने शहर से ही स्टार्ट करना होगा। जैसे पान की हम बात कर रहे थे, उसमें एक चीज ये हुई कि एक दफा मैं रोड पे जा रही थी और एक भैया जी थे, बस वैन में, सॉरी बाइक पे खड़े हुए थे आराम से ना, टांगे से गाड़ी और बस वो रोक के, बाइक रोक के, और उन्होंने जब पान की पीक फेंकी, वो मेरे पैरों से शायद 2 इंच थी, और वो जो सेल्फ रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्स में पीछे हटते हैं ना, मैं यूं होके यूं हो गई थी। जो एम्बेरसमेंट उनको कॉज हुई थी ना, वो वो याद रखेंगे। और मैंने उनको जाते जाते मैंने बोला था, मैंने कहा आप बेशक पान खाएं, मगर इधर उधर मत थूकिएगा। आपको मैं पान खाने से ही नहीं मना करी, मैं ये नहीं कह रही कि खाना ही छोड़ दें, मैं ये कह रही हूँ कि खाएं, eat it, but there is a mannerism and there is an etiquette towards eating pan also. यस। पान लोगों को समझ नहीं आती, बट पान इज अ सोफिस्टिकेशन ऑफ ओल्ड कल्चर्स, जहां तक मुझे पता है एक कल्चरल बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन है, जी। उससे बहुत सोफिस्टिकेशन जाहिर होती है। पान ऐसा नहीं खाया जाता था। पान तो खाने के बाद एक आपके हाजमे के लिए खिलाया जाता था। पान खाने का एक तरीका होता है, और इसको अगर इन लोगों को समझ में आ जाए तो इन्होंने तो आदाब ही खराब कर दिए पान खाने के भी, कि इंसान को पान से ही चिढ़ हो जाए कि पान देखे ही ना वो। जो जिस तरीके से इन्होंने किया, आई एम रियली हैप्पी, फरियाल के लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे इस टॉपिक को। बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे ये अहमर खान साहब हैं, इन्होंने लिखा है वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन राफिया फरियाल, थैंक यू बोथ। थैंक यू अहमर। इसी तरह से एक और हमारे पास एजी ओशन का भी मैसेज है, और उनका भी मैसेज अच्छा है। एक्चुअली दे आर डिस्ट्रॉइंग देयर ओन कंट्री प्लस द फ्यूचर ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन, that if they understand the importance of protecting the future of the generation comes. So this is true कि अगर हम आज ये जो कर रहे हैं हमें नहीं समझ में आ रहा, तो वो ही चीज है कि हम अपने बच्चों का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं, साथ में हम अपनी कंट्री का फ्यूचर तबाह कर रहे हैं। अहमर खान साहब का एक और मैसेज है, ecotourism subjects is unavoidable. I think your travel agent should have some paperwork as reminders and awareness to float and to give their travelers customers, right? या क्या सो कहेंगे फरियाल? एक देखें, जो प्रॉपर
प्रॉपर टूर ऑपरेटर्स हैं दैट दे आर वर्किंग एज अ प्रोफेशन, उनका ये एज अ पेपर वर्क होता है, जिसमें सेफ्टी प्रिकॉशंस एंड हैजर्ड्स के बारे में भी वो आपको आगाह कर रहे होते हैं, कौन सी चीज़ जो उनकी जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी नहीं है उसके बारे में भी आपको बहुत क्लियरली बता रहे होते हैं। उसी में अगर ये 2-3 पॉइंट, जैसे आई ओनली नो 1, 2, 3, आई ओनली नो 3 टूरिज्म कंपनीज दैट वर्क ऑन दैट एंड जिनके साथ मैं कोलैबोरेटिवली एसोसिएटेड हूँ, जल्दी जल्दी बता दें जो आप इसका भी, और आप ये जो कमेंट्स में दे तमीज के दीजिएगा ताकि हाँ, जो तमीज के दायरे में रहते हैं और वो अपने पेपर साइन करवाते हैं एक इंडिविजुअल से, जो वेरी गुड। अग्रीमेंट कहलाता है, that they know कि these things are on us, this is the risk we can take on ourselves. For example, बहुत कोने में पहाड़ के खड़े होकर तस्वीर लेना है, that's illogical, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो रिस्क आप ले रहे हैं, हाँ, आपका टूर ऑपरेटर नहीं ले रहा आपके लिए। इफ यू रिमेम्बर वो जो रोड बंद, इंसिडेंट हुआ था अनसर्टन चीजें हो कश्मीर जाए, में, कुछ भी। हाँ, जैसे ब्रिज वाला इंसिडेंट हुआ था इमेज, कश्मीर में, वो जो ब्रिज ब्रिज गिर टूट गया था गया था, जी। आपको पता जी है कि वो बिल्कुल कैसा है, वो इतना, वहां पे एक बंदा चलते हुए डर रहा होता है, आप इतने सारे लोग खड़े हो गए जाके वहां पे। नहीं, बट एक चीज जो है, पढ़ें, आपके एनवायरनमेंट में इतना बड़ा बोर्ड लगा है, इतना बड़ा बोर्ड लगा है कि एक ब्रिज में 10, एक वक्त में इस ब्रिज को 10 लोग क्रॉस नहीं कर सकते। वो ब्रिज जब गिरा है, जहां तक आई रिमेम्बर, दैट वाज द 50 अबव सेम लोग ईयर आई थे। वाज ट्रैवलिंग कश्मीर। आई थिंक देयर वर प्लस 25 पीपल ऑन अ ब्रिज दैट कैन या होल्ड 10 पीपल ओनली। और या सर्वाइवल एंड सर्वाइवर्स उसमें से बहुत कम थे, उन 35-50 लोगों में से द सर्वाइवल चांसेस वाज वेरी लो, because when I visited that particular place to see, because वही इंसिडेंट 1-2 हफ्ते पहले ही हुआ था when I was in Kashmir, the water flow was extreme, आप गिरेंगे and you're gone। आप लोग एक चीज जो भूल जाते हैं, जो मैं एज अ ट्रैवलर मेंशन करना चाहती हूँ, इज दैट देयर इज अ सर्टेन इनपुट एंड ट्रस्ट जो आपकी फैमिली जिसके तहत आपको भेजती है ट्रैवल करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप अपना रिस्क, कितना रिस्क अपने लिए ले सकते हैं, कितना रिस्क अपनी फैमिली के बिहाफ पे ले सकते हैं, और लेना भी चाहिए कि नहीं। इज इट वर्थ टेकिंग दैट रिस्क और नॉट? आई मीन लाइक एज पे खड़े होकर तस्वीर लेनी है एट सर्टेन प्लेसेस, एज से अगर आप गए एंड इफ यू जस्ट स्लिप्ड, यू आर गॉन। एंड रिस्क टेकिंग हम लोग बड़ी जज्बाती कौम है, हम लोग को बहुत शौक है स्टंट्स करने का और रिस्क लेने का, हाँ, बट काइंड ऑफ बिल्कुल। रिस्क आर यू विलिंग टू टेक एंड व्हाट इज एट स्टेक, हम ये नहीं ख्याल रखते। हम इन रिस्क टेकिंग में बहुत पर्टिकुलर होना चाहिए, और इन रिस्क के बारे में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स आपको पहले ही अवेयर कर देते हैं कि सर ये नहीं करना है, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। अच्छा है। अनसर्टेनिटी कंडीशंस हो जाए, लैंडस्लाइड हो जाए, दे आर विलिंग टू टेक दैट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन दैट सर्टेन डोमेन कि अच्छा लैंडस्लाइड हो गई मैम, रास्ता नहीं होगा, फ्लाइट बंद हो गई, मौसम खराब हो गया, दैट इज समथिंग विच इज अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। एक होते हैं जो आप हम्म, बहुत इजीली अवॉइड कर सकते हैं, बट उतना रिस्क क्यों लें? पीपल आर वेरी इंटरेस्टेड टू पुट देयर, वही बात मैं कह रही हूँ ना कि सोशल मीडिया से उनको इतना कनेक्टेड रहना होता है उधर भी, कि वो बहुत रिस्क लेते हैं सर्टेन चीजों में, एंड इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट वर्थ इट टेकिंग दैट रिस्क। आपको सबसे पहले वो एक बात है ना कि दरवेज जिंदगी से अगर वो सीख सकते हैं ना, वो ये है कि खुद को सबसे पहले रखो, खुदा के बाद सबसे पहले सिंपल। खुद को रखना चाहिए। आप घर पे, इफ यू आर मैरिड, आप घर पे एक वाइफ को छोड़ के आए, 2 बच्चों को छोड़ के आए। इफ यू आर यंग यंग यूथ आप है, आपकी अम्मा फिक्रमंद है, हाय अल्लाह मेरे बच्चे को भेज दिया, भेज तो दिया है, बट वो अम्मा की जान अटकी रहेगी जब तक बच्चे वापस नहीं आएंगे घर पे। मदर एंड फादर बोथ, यू डू नॉट, आपकी कहीं पे भी सेंसेस में ये बात केटर रजिस्टर नहीं कर रही होती कि वो रिस्क आपने लेना है कि नहीं लेना है। बिल्कुल। और अगर आपके, इफ यू हैव पीपल जो आपके इर्द गिर्द कॉन्शियस हैं, वो आपका ख्याल रख रहे हैं, आप पे नजर रख रहे हैं, देन यू आर ब्लेस्ड माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप ऐसे बेशक। सर्कमस्टेंसेस में नहीं है, तो आप रिस्क ऐसा ले भी नहीं। वो ये होता है ना, मेरी सेल्फी लेनी है, बहुत अच्छा नजारा है, मैं खुद ही ले लेता हूँ, यू डोंट नो इफ इट्स एज बिहाइंड। इतना रिलक्टेंस लोगों के बिहेवियर में भी है कि आप अपने ट्रैवल पार्टनर को या अपने बस वाले बडी को ये नहीं कह सकते कि भाई मैं खड़ा हूं ना, मेरी तस्वीर ले लो। he'll not say anything to you, he'll not harm you, probably he can in return say कि अच्छा मैंने आपकी तस्वीर ली, आप मेरी तस्वीर ले लें। That's हाँ, it, that is the only या expectation that person would do। बट हम इतना या हेजिटेट होते हैं, हम कहते हैं अच्छा नहीं खुद कर लेते हैं। वो खुद करने के चक्कर में अगर हम किसी बहुत इंसिडेंट में कुछ फंस गलत हो जाते जाता हैं, है।
बहुत कुछ गलत हो जाता है, एग्जैक्टली तो और मेन ऐसे चीज ये कि अगर अनअवॉइडेबल आप, रिस्क नहीं लेने चाहिए। और एक और चीज, अगर आप माउंटेन ड्राइवर नहीं हैं, मैं ये बोलना चाहूंगी प्लीज कि प्लीज ये डोंट। रिस्क मत लीजिएगा, क्योंकि देखें माउंटेन्स के अंदर गाड़ी चलाना बहुत आसान नहीं होता है। आप जो रोड पे आप बिल्कुल एक आसान नहीं प्लेन होता है, स्मूथ बहुत तो रोड पे छोड़े। चला रहे होते हैं, बहुत डिफरेंस होता है। और हर जगह एक अलग ग्रेविटी होती है, हर जगह एक अलग उसका टर्निंग और उसकी जो चीजें वो आप लोगों को नहीं आप लोग किसी और के एक्सीडेंट का सबब बनते हैं, क्योंकि जब आप लोग टर्निंग पे गाड़ी को रोक देते हैं, जो पीछे से आने वाली गाड़ी है ना, उसके लिए बहुत खतरनाक हो जाता है कि वो एक्सीडेंट हो सकता है आपकी वजह से। टर्निंग पे कोई गाड़ी नहीं रोकता, और ये मैंने फेस किया है, हमने फेस किया है व्हाइल ड्राइविंग सो मेनी टाइम। हम इस तरह से एक्सीडेंट से बचे कि एकदम किसी ने गाड़ी रोक दी, या उन्होंने ब्रेक लगाना शुरू कर दी चढ़ाई के ऊपर। आप चढ़ाई पे चढ़ते हुए अगर बार बार ब्रेक लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, एंड आप नीचे आते हुए बार बार ब्रेक लगाएंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। आपने इट्स वेरी मतलब डेंजरस। आप दूसरे के लिए खतरनाक बन रहे हैं। आप गाड़ी अगर चढ़ाई पे चढ़ते हुए भी रोक रहे हैं, तो आपके लिए तो डेंजरस है, दूसरे के लिए भी डेंजर है जो पीछे से आ रहा है। क्योंकि जब टर्निंग हो रही होती है तो किसी को कुछ नजर नहीं आता कि आगे गाड़ी किस पोजीशन में खड़ी है, और अगर वो छोटी गाड़ी है उसको तो नजर भी नहीं आएगा कि उस गाड़ी की हाइट है। बिल्कुल भी ब्लाइंड क्योंकि कॉर्नर्स होते हैं। यहाँ पे लोग एफएक्स, जो मेरे ख्याल से एक्सपायर हो चुकी है गाड़ी, जिसको एक्सपायर हो जाना चाहिए, वो माउंटेन्स में चढ़ रही होती है, वो नजर भी नहीं आती कि वो है कहाँ। और एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करना चाहूंगी फरियाल, वो मेरे लिए बहुत हॉरिबल था। फर्स्ट टाइम माउंटेन में आप जा रहे हैं, और फर्स्ट इंसिडेंट वो जो आपने देखा, मेरे हस्बैंड ड्राइव करते हैं तो आई एम रियली फील सेफ, मैं किसी और के साथ नहीं ड्राइव जा सकती। तो हमारे सामने एक एफएक्स बहुत तेजी से निकली, और इतनी तेजी से कि मैं परेशान होकर देख रही हूँ, यार ये माउंटेन्स में एफएक्स आ गई। थोड़ी देर हम जब आगे गए, अल्लाह ताला पता नहीं क्या हुआ वहां, लेकिन वो गाड़ी नीचे गिर गई थी खाई में, और लोग उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे। जब तक हम थोड़ा आगे जाके देखा तो लोग वहां खड़े हुए हैं, और ये हुआ। तो ये क्या था, ये आपकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो आपने अपने आप को 30 मार खान समझा, और आप समझ रहे हैं मौत के कुएं में गाड़ी चला रहे हैं, या आपको कोई रिवॉर्ड मिल जाएगा अगर आप तेजी से आगे निकल जाएंगे किसी से। एक तो यहाँ पे ईगो बहुत आ जाता है, अगर आपसे कोई गाड़ी बिल्कुल। आगे निकल गई तो आपने आगे निकलना है उससे किसी भी हाल में। भाई पहाड़ों में तो ये रेस नहीं लगाओ ना, इसमें तो आपकी भी जान जाएगी, दूसरे की भी जान जाएगी, आप अपनी फैमिली के साथ हाँ, बैठे हुए होते हैं। एक चीज जो बहुत इम्पोर्टेंट है व्हेन ट्रैवलिंग इन पाकिस्तान पीपल डोंट अंडरस्टैंड इज, आपसे ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट मेरे हिसाब से एट पॉइंट्स शुड बी गिवन टू द ड्राइवर हु इज टेकिंग यू ऑल द प्लेसेस। यस। और क्या आप खाना खा रहे तो उन्होंने खाना खाया कि नहीं, चाय पिए कि नहीं, उनको नींद आ रही है, बिल्कुल। 1 घंटे की उनको ब्रेक लेनी है, आप कहीं रुक जाए, आपको 1 घंटे तस्वीर खींचने में पता नहीं चलेंगे, उनको सोने दे इफ दे हैव नॉट स्लेप्ट प्रॉपर्ली। वरना आप दैट सब इज सो जाएंगे वेरी, हमेशा के लिए। बिल्कुल। आपको ड्राइव सबसे आई हैट्स ऑफ टू दोस टूर कंपनीज जिनके साथ मैं ट्रैवल करती हूँ, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट देयर ड्राइवर्स हेल्थ, their sleep and their appetite, because आप एक बस ड्राइवर है, आपकी लाइफ पे जैसे पायलट है, उसकी लाइफ पे पूरे जहाज के पैसेंजर्स की लाइफ डिपेंडेंट है, उसी तरीके से बस ड्राइवर और अ कार ड्राइवर और 4 व्हीलर ड्राइवर अपनी लाइफ के साथ साथ दे हैव 6 लाइफ 7 lives और 32 people's dependability on them, and they cannot take that kind of risk. And people who are in traveling habit, या जो अपना होमवर्क करके जाते हैं या उन्होंने एक बार भी ट्रैवल किया हुआ है ना, उनके लिए सबसे प्लस पॉइंट ये होता है दैट यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स योर ड्राइवर। अपार्ट फ्रॉम द टूर कंपनी आपका भी एक सेंस ऑफ एथिक्स एंड नॉर्म्स होने चाहिए। नंबर टू, मेक श्योर दैट वो आपको जहाँ लेके जाने वाले हैं आप उनको थोड़ा कंफर्टेबल, एज अ जनरल पर्सन ऑल्सो हमने उनको कंफर्टेबल किया हुआ, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो वहाँ के लोकल होते हैं, उनको पता है कौन सा रोड कैसा है, किस मौसम में किस स्पीड पे गाड़ी चलानी है, कौन से टर्न पे गाड़ी हल्की करनी है, कहाँ गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ेगी तो आहिस्ता चलेगी, कहाँ नीचे आएगी तो तेज आएगी, कहाँ पे इतना लोड होता है गाड़ी के इंजन पे कि वो कहते हैं लोगों को जैसे बाबू सर टॉप पे है, दे टेल यू बिल्कुल। गेट ऑफ एंजॉय द व्यू, बस थोड़ी नीचे खड़ी होगी आके आके बैठ जाए। हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम हेयर एंड दे से कि फरयाल अच्छा हम इस्लामाबाद आ जाते, गाड़ी आगे हम चला के लेके जाएंगे, आई विल जस्ट से देम वन वर्ड, इट वुड बी लाइक माफ कर दो प्लीज, simply decline if you don't have trust. If they are excellent drivers and they can perform well in Karachi and within the city,
उसका एंड नॉर्दर्न एरियाज में ड्राइविंग का कोई कोई कंपैरिजन तारीफ नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है. So anybody who I know and I trust a lot during driving, और उसमें भी regional differentiation आ जाती हैं. मुझे if I know somebody from here and I trust a lot and they say कि हम by road पंजाब हुंजा तक चलते हैं, that will still be okay. अगर मुझे कोई कहे कि फरयाल हम लोकल हैं, वो पाकिस्तान कराची से हैं, he will like I'll drive you to Skardu, I'll say no, please no. नो. If the person would say कि let's go and ferry meadows की ट्रैक पे पाकिस्तानी कराची का ड्राइव करना है, I will say कभी माफ कर दो. कभी नहीं. Because people, if people are tuned over here, आप जाके ferry meadows का ट्रैक देखें. It's 1.5 hour track by ओ jeep, माय गॉड. not a four-wheeler, not the six-seater वाली, the छोटी वाली jeep. वो जो वो वहां पे अक्सर सिर्फ आपको उस नजर आती गांव होंगी. के लोकल चला सकते हैं. Exactly. सिर्फ. Why? Because it's one way road. अगर सामने से गाड़ी आ रही है, आपकी आपका जीप वाला कौन से माउंटेन के कर्व में आपकी जीप लगाएगा और वो गाड़ी क्रॉस करेगी, यू डोंट नो. वो एक कर्व पे आके गाड़ी जब अगर आपको फर्स्ट टाइम एंड यू आर गोइंग टू फेरी मेडल्स और उन्होंने एक कर्व पे आके गाड़ी रोक ली है और वो कहें कि आप पूछें गाड़ी क्यों रोके भैया, वो आगे से गाड़ी आ रही है, आपकी विजन में वो आपकी गाड़ी आपको गाड़ी. नजर नहीं आ रही होगी, आपने नहीं देखी वो कार. वो उस ड्राइवर ने अपने से आगे 3 पहाड़ों की जो टर्न था उस पे जब जीप आ उस रही पे थी देख तो ली. उसने देख ली थी, उसने वहां से देख ली. और पता है एंड इनके वहीं से आपस में भी उसकी, ये लोग दे आर यस, कनेक्टेड वहीं से आल्सो. उनकी कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाती है जी. कि बाजी वो उधर उस वाले जो कर्व है उसमें गाड़ी ऊपर करेगा तो हमारी गुजरेगी, तो इसलिए अब उसको निकलने दें, यहाँ तक आने दें. बिल्कुल बिल्कुल. I would say that people who are very eager to live in Pakistan, especially to northern areas, वो एक दफा फेरी मेडोज से होकर आ जाए, बस सब सेट हो जाएगा. उनकी उसके बाद उनको कोई टेंशन नहीं होगी. फिर उसके डर भी बाद वो. उनको कोई टेंशन ही नहीं होगी, उनके अच्छा सारे मेरे साथ डर बड़ा बैड उनकी एक्सपीरियंस है सब कश्मीर सेट हो के लिए. जाएगा. मेरे साथ बड़ा बैड एक्सपीरियंस है कश्मीर के लिए कि जो उसका नया रोड बना था वहां से जाने की बजाय मुझे हमें किसी ने मिस गाइड कर दिया और हम ओल्ड रोड से गए जो बहुत ही छोटा नैरो कि अगर एक गाड़ी आती है तो दूसरी गाड़ी को रुकना नहीं पड़ता जा है. सकती. वो वाला जो एक्सपीरियंस था उसने मेरे सारे डर निकाल दिए कि वो जब वो एक्सपीरियंस मैंने किया इसमें बस एक टायर पे नीचे और एक ऊपर होके गुजर रही थी एंड मेरी हालत ऐसी थी कि ये क्या हो रहा है. मतलब बिल्कुल. आपको बस फिर भी वही कहेंगे कि प्लीज बी सेफ. आप लोग 30 मार खान नहीं है. आप लोग बिल्कुल एकदम से कराची से रिस्क दूर भी ले. प्लीज ये रिस्क मत लें. वहां पे लोकल हैं जो जानते हैं उनसे गाइडलाइन लें. अब जैसे मुझे मसरूर चेहरा साहब की एक बात बहुत अच्छी लगी है, उनकी पूरी जो कम्युनिकेशन जो उन्होंने लिखा है इसमें कि इम्प्रूव अवर स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड टेक बेस्ट यूज ऑफ डिजिटल एप्स एंड टेक्नोलॉजी. तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक कि हमारे पास बाज़-औक़ात वाक़ई में बहुत इश्यूज़ होते हैं कि हमें प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं. हमें बहुत सारी चीज़ें हम अगर सर्च करते हैं वो हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है. तो हम जैसे लोगों को अब ये थोड़ा करना चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म जहाँ पे हम ये चीज़ें ऐड करें. हम लोगों को बताएँ कि अगर आप ट्रैवल करने लगे हैं इस एरिया में तो प्लीज़ ये प्रिकॉशंस ले लीजिए और ये चीज़ें होनी चाहिए ताकि अगर उन लोगों को पता हो कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर हम जाएँगे तो हमें ये चीज़ें मिलेंगी. हमें यहाँ पे लोगों से गाइडलाइन मिलेगी और वो उसको फॉलो करेंगे. एक साइट है गुरु के नाम से, मुझे किसी ने बताया था जब मैं यहीं पे शायद इस्लामाबाद में थी. वो आपको वेदर बताता है पूरा उस एरिया का, नॉर्दर्न एरिया का. उस पे आपको पता होता है, वहाँ पे लोग अपडेट कर रहे होते हैं कि किस तरह का वेदर होने वाला है और क्या होने वाला है. वो बहुत ज़बरदस्त जगह मतलब है, फेसबुक पर ही है और मैं इंशाल्लाह इसी में वो लिंक शेयर कर दूँगी. तो वो बड़ा आपको ना पहले से आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि अच्छा जी ये वेदर है और ये वेदर एक्सपेक्टेड है वहाँ का. क्योंकि वही बात जो फरियाल ने की थी कि वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि कल क्या होने वाला है. जैसे कराची में किसी को नहीं पता ना, रोज़ बारिश होनी होती है लेकिन बारिश हो रही बारिश है, नहीं होती रोज बारिश हो रही है. लेकिन बारिश नहीं होती है. तो वैसे वहाँ लोगों को पता होता है कि बारिश होनी है या नहीं होनी है, उनको एग्ज़ैक्टली पता होता है. आई एम रियली हैप्पी फरियाल. बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, लोगों को हमारी बात समझ भी आ रही है, समझ रहे हैं और मेरे ख्याल से आप जब फ्री होंगी तो प्लीज़ आप इन सब से गो थ्रू होइएगा. ये जो कमेंट्स हैं Yes, आपको I'll go through all the इनको प्लीज़ comments चेक also. करें और इनको रिप्लाई करें. और जाते-जाते एक क्वेश्चन, क्या प्लान है नेक्स्ट ट्रैवलिंग के लिए आपका?
ओके, नेक्स्ट ट्रैवलिंग के लिए प्लान एज सच ये है कि देयर इज ऑलवेज ईगरनेस होती है लड़कियों को, और मैं अपने जो, जैसे मैं अभी मेंशन कर रही थी, द थ्री travel companies I feel very convenient to go with are collaborated to each other. एक है proper initiative है, it's called Zero Kilometer. One of my very close friends started that company to promote Balochistan ke beaches and Sindh ka tourism. And now that has turned into an entire organization that is working on tourism, promoting Karachi, Pakistan tourism in a very different way. He himself is based in Turkey, and he's doing amazing work in promoting tourism between Pakistan, Turkey, or uska relationship. So my first priority is always that my first query, my first question, my first demand also as a customer or as a person is like, बेटा यहाँ जाना है, एंड मुझे एक ही जवाब होता है, जी फरियाल बाजी, बेटा वो मेरे फ्रेंड्स को कुंडमली जाना है, यहाँ जा, इस दिन जा रही है, इस दिन जा रही है. इट्स लाइक द 80% of work which are very good tour companies have already done the 80% of work for you. 20% आपकी जिम्मेदारी है कि आप होमवर्क करें, अपने मौसम को चेक करें, अपनी हेल्थ को चेक करें, आपको वॉकिंग हैबिट है कि नहीं, आपको हाइक करने की हैबिट है कि नहीं, आप हाइक कर सकेंगे नहीं, कितना रिस्क टेकिंग है, कौन सी चीज़ अवॉइड कर सकते हैं. वो 20% हम पे लागू होता है और 80% उन लोगों पे लागू होता है, बिकॉज दे हैव डन अ वेरी ट्रेमेंडस जॉब. So True. one company I know is Zero Kilometer. Then there's another one which creates content as in YouTube पे channel पे videos भी डालते हैं, वो Explore My PK करके है. Then there is a new initiative which is extremely working for customized trip to Skardu. Is an initiative जो वहाँ के ही local या natives के लिए उन्होंने start करा है. It's on Instagram right now. It's called Shomal Pakistan. Wow. The guys that have started Shomal Pakistan also represent Gilgit Baltistan Photography Association को भी वो represent करते हैं. Okay. And they were the people जिन्होंने मेरा मिल्की वे के साथ पिक्चर लेने का अरमान पूरा किया था. Wow. Wow. It was a Wow. request, and मुझे भी बहुत सारे लोग जैसी तस्वीर देखते हैं, एडिटेड, आई वाज लाइक नहीं, ये एडिटेड अच्छा, नहीं बहुत से है. लोगों को नहीं पता कि इन स्कर्दू यू कैन सी मिल्की वे. इनको You can कितने see लोग हमारे it. पाकिस्तान में नहीं पता. इवन इन बलूचिस्तान, जैसे अभी Yes. टेन्योर है ऑफ मिल्की वे, जो कॉन्स्टलेशन जो कहलाती है, इफ यू आर इनटू एस्ट्रोनॉमी पढ़ते हैं या एस्ट्रोलॉजी पढ़ने वाले जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उनको पता होता है, उनके पास ऐप होती है. तो बिल्कुल. सबसे ज्यादा क्लियर मिल्की वे जो दिखती है वो अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ही दिखती है, बीच में. व्हेन देयर इज बिल्कुल. नो फुल मून. फुल मून बिल्कुल. नहीं होना चाहिए तब. बिल्कुल. मेरी लाइफ का लास्ट ईयर वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि मैंने 1 घंटे में 12-13 टूटते हुए तारे देखे थे. Wow. और वो मिल्की वे जो मेरी पिक्चर में पीछे दिख रहा है, वो वो मुझे कोई रियल है. टेलीस्कोप कहीं यूज नहीं करना पड़ता, वो रियल है. जैसे हम बीच पे बैठ के सनसेट देखते हैं इन कराची, उस तरीके से हमने सफरंगा कोल्ड डेजर्ट में 16 लोगों ने यूथ सेंट्रिक Wow. ऑडियंस से बैठ के सिर्फ उस आसमान को देखा है, शुक्र अदा किया है, एंजॉय किया है. किसी को कोई तस्वीर लेने की जरूरत नहीं थी, किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की है. एंड स्टिल वी वेंट इन अगस्त, ऑलमोस्ट एन ईयर होने वाला है. स्टिल दैट पिक्चर इज आवर डिस्प्ले पिक्चर और कवर फोटो और ईदर ऑन व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम. एंड दैट एक्सपीरियंस इज अनमैचेबल. वो कहीं पे भी नहीं हो सकता एक्सपीरियंस. सो वो चीज, वो पॉसिबिलिटीज हमारे क्रिएट हो रही हैं, वो नेटिव्स ही, उस जगह के लोकल्स ही क्रिएट कर रहे हैं. दे आर ऑफरिंग यू डिफरेंट काइंड ऑफ, इफ यू आर गोइंग फॉर अ लोकल ट्रिप, जो कि अभी सिर्फ जहाँ तक मैंने सुना है वो स्कर्दू में ही हुई है. एंड जैसे मैंने बताया, इट्स वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट प्लेसेस वे यू कैन टेक अ फ्लाइट एंड जस्ट गो. So you can Hmm. always approach them for local traveling. Future plan में I ये think है कि we मैं are looking आपसे forward केवल to चाहूंगी फिलहाल. introduce some trips also. जी जी बिल्कुल, राम. मैं आपसे एक फेवर चाहूंगी कि आप जिनको रिकमेंड कर रही हैं, प्लीज वो लिंक जरूर आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, ताकि लोग भी उनसे फायदा उठाएं. और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बिल्कुल. बाज लोग कंप्लेन करते हैं कि हम गए, हमारे बिल्कुल सही. मैंने ये फेस किया था व्हेन आई वाज इन हुंजा. मैंने नहीं किया था. देयर इज अ फैमिली, दे वर वेरी अपसेट एंड दे वांट रूम इन सेरीना हुंजा. तो
पूछा मैंने लेडी से, तो उन्होंने जो ट्रैवल पूरा जो बुक किया था वो इंग्लैंड से किया था, और उनको नहीं पता था कि जो एजेंट थे वो सही नहीं थे, और उन्होंने जो चीजें होटल्स उनके लिए बुक किए थे और प्राइजेस बहुत हाई थे, और जो होटल किए गए थे बुक वो इतने प्राइजेस के नहीं बेसिकली। उसमें सबसे बड़ा इशू ये था कि दे आर नॉट यूज्ड टू विद डब्ल्यूसी, दे आर यूज्ड टू विद कमोड, तो देयर इज दैट इज द बिगेस्ट इशू। ये बहुत से जगह पे अब ये इशू लोगों को है, आता लेकिन है। अब बिल्कुल, लेकिन अब नॉर्दर्न एरिया में भी ये चीजें सॉल्व हो चुकी हैं। हर जगह पे आपके कुछ होटल्स हैं जिनके अंदर अवेलेबल है, बहुत सारे होटल्स हैं, कुछ नहीं, उनमें डब्ल्यूसी और कमोड दोनों अवेलेबल है। तो बिल्कुल। इस तरह का जो मतलब बाद टूरिस्ट जो हैं वो आपका नाम खराब कर रहे होते हैं कंपनीज के, वो ले लेते हैं लोगों से, बाहर के लोगों के साथ भी डील कर लेते हैं, लेकिन जब वो उनको सर्विसेज देते हैं तो वो क्या होता है इन द एंड, किसका नाम बदनाम होता है? पाकिस्तान का नाम बदनाम होता है, उसमें किसी और बिल्कुल का नाम कहीं बिल्कुल। बदनाम नहीं हो रहा, वो एजेंट कहीं नजर नहीं आ रहा, वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे जिन्होंने वो सब खराब किया था, सिर्फ नजर क्या आ रहा है, वी वेंट टू पाकिस्तान, दिस इज हैपेंड। तो किसका नाम बदनाम हुआ? पाकिस्तान का नाम। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कुछ ऐसा करें कि जिससे पाकिस्तान का नाम आगे जाए, ना कि बदनाम हो ना। हम प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी टूरिज्म की, और हम चाह रहे हैं, और यही मैं आपसे फेवर चाहूंगी फरियाल, कि आप वो आप कह रहे हैं जो कंपनीज हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं अच्छे हैं, उन्हें प्लीज रिकमेंड करें, ताकि लोग उनसे, हमारे पास इंटरनेशनल लोग भी हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड हैं दरवेश जिंदगी पे, तो अगर वो लोग चाहें कि वो अपना टूर प्लान करना चाहें तो उनके लिए बहुत ईजी होगा कि वो उन लोगों से कांटेक्ट करें और अपना टूर प्लान करें। तो ये अच्छी बात है मेरे ख्याल से। व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक तीन मैंने जो मेंशन किए हैं, वन इज सेंट्रिकली विच इज स्पेसिफिकली फॉर स्कर्दू, एंड वन इज फॉर ऑल अक्रॉस पाकिस्तान। ठीक है, तो मैं उनके या बारे में वेरी उनके गुड। लिंक्स के साथ आई शेयर अ राइट अप, एंड यू कैन यस, अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे बाय एयर स्कर्दू जाना है और मुझे 7 days या 4 days का ट्रिप अवेल करना है, मैं किसके पास जाऊँ? आई विल बी लाइक, दीज आर द नेटिव्स, कॉन्टैक्ट दैम। फॉर एग्जाम्पल 0 किलोमीटर है, एंड 0 किलोमीटर अगर आपको टर्की जाना है उनके थ्रू, तो टर्की के लिए आपको किसको अप्रोच करना है? अगर आपको कॉर्पोरेट इवेंट लेके जाना है तो वो आपको उनकी टीम आगे बताती जाएगी, बिकॉज टीम की भी टीम होती है। You can always approach the person head in charge of 0 kilometer as well. Explore my PKs for people that are traveling from Multan and Lahore beyond. वो जो लोग लाहौर या मुल्तान से ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए कौन सपोर्ट कर सकता है, वो कर सकता है। तो इस तरीके से तीन डिफरेंट कोलैबोरेशन हैं जिन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारियां ली हुई हैं, और वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे होते हैं। एंड आई कैन, बिल्कुल एज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई कैन गारंटी कि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अमेजिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लोर माई पीके के थ्रू आई वेंट टू लाहौर जस्ट फॉर वर्क, बट मेरे पास छुट्टी थी और मैंने लाहौर 15 साल बाद सही से देख रही थी। आप जाते हैं, आपने फ्लाइट लिया, अपना काम किया, कॉन्फ्रेंस अटेंड की, वापस आ गए। आप गए, ट्रैवल किया, यू क्रॉस वाघा बॉर्डर, यू वेंट टू इंडिया, यू केम बैक। You never got the time to see Bachayi Masjid, which my dad showed me in 2005 when he took us for a family tour. उसके बाद से आपने देखा ही नहीं। एंड आई वॉज लाइक, व्हाट इज गोइंग ऑन ना, मुझे देखना है, 15 साल हो गए, 15 साल इज अ बिग थिंग। So I requested my friend who takes this tours, and he arranged a walled city tour, walled city authority of Lahore जो है, वो लाहौर में जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और जगहें हैं उनकी अथॉरिटी एक डेवलप हुई है बाय पाकिस्तान टूरिज्म एंड पाकिस्तान गवर्नमेंट, जिससे वो जगहों को रेनोवेट करें, रिफर्निश करें, वहाँ का ख्याल रख रहे हैं और वहाँ पे पॉजिटिव टूरिज्म को प्रमोट करें। I was given an entire day tour, which started from Wazir Mosque. Delhi Gate से start हुआ from Wazir Mosque, and it ended at Food Street, very famous restaurant हवेलियाँ, जिसका लोग सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि वहाँ से बादशाही मस्जिद दिखती है खाना खाते हुए। लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं उस व्यू के लिए भी। So I went till there, and I had a proper guide who took me to all of those places with historical instructions and everything, and मेरे लिए बहुत amazing experience था। For example, I was like कि ये मीनार पाकिस्तान बादशाही मस्जिद के इतना करीब कब आ गया? Where is the road that was going in between? And they were like, वो तो 8 साल पहले उन्होंने रोड खत्म कर दिया, बहुत कंजेस्टेड होता था। तो now मीनार पाकिस्तान is in the same locality as बादशाही मस्जिद and other places.
So I went for a full day tour which was for 4 hours, but it was worth it. मैंने वजीर मॉस देखी, मैंने बादशाही मस्जिद देखी, मैंने मीनार पाकिस्तान देख लिया, शीश महल मैंने देखा, वहाँ पे कौन से एरियाज में काम हो रहा है कहाँ नहीं हो रहा. एंड आई एम टेलिंग यू दिस अबाउट November 2020. सो देर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हो रही हैं, उसको आप गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को एज ए लोकल कैसे सपोर्ट कर रहे हैं. एंड दैट वाज एन एक्सपीरियंस आई एम नॉट गोना फॉरगेट. I recommended 3 people then and there that were here from London. You should go for that tour, and they enjoyed it as much as I did. एंड कुछ ना सही तो आपको दुआ तो जरूर मिल जाती है दैट आपने सही इंसान की तरफ आपने सही, रेफर करा एंड बिल्कुल यू गॉट द बिल्कुल अपॉर्चुनिटी टू दैट. बिल्कुल. So these 3 organizations created amazing experience for me, be it in within Pakistan. I really want to experience the trip to Turkey, but unfortunately, because of 14 days of quarantine, I declined that plan entirely because इसमें Turkey जाके आपको अगर 14 टर्की days जाना है तो यू बिल्कुल हैव टू टेक wait. वन I'll have मंथ to लीव wait. के 15 दिन आप क्वारंटीन हो और 15 दिन आप एंजॉय करें. बिल्कुल उतना रिस्क हम अभी प्रोफेशनल नहीं ले होकर उतना सकते. रिस्क हम ले नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं नहीं ले ले सकते. सकते. सो आई थॉट उससे बेटर ये है कि आई टेक माय सिस्टर और माय सिबलिंग्स टू Hunza for 7 days. That's much more वाह. convenient, but I cannot do या that. So, what we are planning to do in future is कि आपने भी recommend किया था और हम लोग ये चाहते हैं कि we are looking forward to take all girls trip to Skardu for now, and हम उसकी आइटनरी एंड किस एंटिटी के साथ कोलैबोरेट करके उसको अनाउंस करें. विल लेट ऑल द इंफॉर्मेशन नो. It would be very safe in terms of girls traveling to Skardu, and that plan is exactly after Bakra Eid. So, if there are girls you know in your family, in your circle that are interested to travel and they want to go and enjoy, we can work on that trip and they can go for a 7 day trip to Skardu, and that would ओके. be really really good. And उसके साथ साथ ये जो 3-4 links मैंने बताए हैं, I'll share a write up about them, and I'll make sure that the concerned people know that if there is a certain client coming from your reference, my reference, or this group बिल्कुल. reference, they facilitate them very properly. So that would be really really amazing. Um, इंशाल्लाह so ताला. I think बल्कि that can be done. yeah, inshallah, and you must share all details so we can share in our groups as well. We have women's groups also, so we can share in those places. बहुत मजा आ रहा है. टाइम गुजर गया है पता नहीं चला. सीरियसली आई थिंक हमें एक और सेशन रखना चाहिए और न्यू टॉपिक्स पे Sure, बात करनी inshallah. चाहिए. I think इंशाल्लाह there are a ताला. lot of suggestions and questions जो हमारे पास आए हैं in the comments also, and I think it Yes, would be great if we can have local tour guide owners and बिल्कुल. operators to participate in a session with us, Yes, and next also that इंशाल्लाह. guides जो historical जगहों के बारे में बात करते हैं, बिल्कुल उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी होती है उन जगहों की, उनके भी हम बात बिल्कुल. कर सकते हैं. तो तो that आई can be थिंक one of the second series of this talk, inshallah. इंशाल्लाह इंशाल्लाह. और ये आप लोगों के लिए आई थिंक और इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हम दो नहीं होंगे, हमारे साथ और लोग होंगे जो आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे और बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू सो मच फरियाल. बहुत अच्छा लगा आपके साथ. मुझे लग रहा था मैं दोबारा ट्रैवल कर रही हूँ और पीछे जो सीनरी है वो मुझे दोबारा बुला रही है कि आ जाओ इस कर दूँ. We should go inshallah. We should go. इंशाल्लाह. तो अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन पे मिलते हैं आपके Thank you साथ. so और much for जितने भी having me. कमेंट्स हैं इट्स रियली प्लेजर. और जितने भी कमेंट्स हैं प्लीज उसको देख लीजिएगा. बहुत सारे सजेशंस बिल्कुल, हैं, I'll बहुत go सारी through अच्छी them. बातें हैं और बहुत सारा एप्रिसिएशन है जो मुझे देख के वाकई में अच्छा लग रहा है कि लोगों को हमारी बात समझ आ रही है और अच्छी लग रही है. थैंक यू I'm एवरीवन. very अपना glad ख्याल about it. रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी. अल्लाह हाफिज. Take care, everybody. Thank you so much for अल्लाह having me. हाफिज. Jazakallah. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.